She is a loser. Hina is so vile and unlikable till now. Nothing has changed in her personality. She herself had done body shaming, character assassination, humiliated people in her Big Boss season. She even called Sakshi Tanwar as not beautiful and bhangi. Called Shilpa a drum and many more. Humiliated Dhinchak Pooja and Sapna Chaudhary in a very distasteful way. Just shut up, Hina. Oh my god, she is still a loser. Sore loser. I thought pain turns people into humble, but Hina has not evolved. Thank god she was a loser in Big Boss. Hina Khan is still jealous of Shilpa. Hina saying she doesn't like negativity, like girl, did you forget your own personality in Big Boss? Biggest bully in the house. She keep grudges and is a sore loser. I remember her calling Shilpa a drum. She also said mere jaise banke dikhao. Well, Karma is a bitch. She used to call herself Sher Khan in the show like WTF. I remember that like it was yesterday. I was too young to understand why. She was brutal and she really abused Shilpa, body shaming, name calling, belittling, bullying in all possible ways despite being good at strategies and games. Hina said much more controversial, horrible, character assassinating stuff in her Big Boss stint than Shilpa could ever. There were literally celebs saying that they wanna slap Hina for her statements. There was a girl Pooja, she had lies. Hina along with her friends made fun of her. Hina even sang a song, मेडिकार मैंने लगा लिया आज, सर पर मेरे रहता लिखों का ताज. That's bullying 101. Even that time Shilpa took Pooja to side and बहुत प्यार से समझाया उसको कि use this shampoo and all. Second, Arshi Khan was wearing a nightgown and she along with another guy. How vulgar she is, not wearing inners underneath her nightgown. Third, she body shamed Shilpa and Arshi saying, ना शक्ल ना सूरत, ऊपर से नीचे तक ड्रम मेरे साथ खड़े रहने के लायक भी नहीं है. Fourth, she provoked boys of a group to say horrible things to Shilpa and throw water at her. List goes on, but my fingers have given up. So these are some comments made by people reminding Hina Khan when she came to Lock Up Season 2 and said कि Shilpa character assassinate करती है लोगों को और वो ऐसे इंसान को सेव नहीं कर सकती, वो उनके उसूलों के खिलाफ है, वो उनके मॉडल्स के खिलाफ है. वेल अगर मॉडल की बात करें तो बिग बॉस में पूरी मॉरलिटी दिखाई है हिना खान ने बहुत ही अच्छे से और ऑडियंस को अभी भी याद है. सो इन दिस एपिसोड वी विल टॉक अबाउट टू लेजेंडरी राइवल्स एंड दैट इज हिना खान एंड शिल्पा शिंदे. मतलब इनका बिग बॉस 11 वाला ट्रॉमा खत्म ही नहीं हो रहा है एंड हिना कैन नॉट मूव ऑन पीरियड. मैंने पहले भी पॉडकास्ट बनाया है इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि हिना खान ने एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर दिया आफ्टर शिल्पा शिंदे केम टू लॉकअप सीजन 2. बट वहां तक वो नहीं रुकी, इतना ट्रोलिंग हुई उसकी कि भाई प्लीज मूव ऑन. स्टिल शी हैज गट्स टू कम इन लॉकअप एज अ गेस्ट शिल्पा शिंदे को नीचा दिखाने के लिए. तो होता क्या है, ये वीक हिना आई लॉकअप के अंदर एज अ स्पेशल गेस्ट, साथ में उर्फी जावेद भी थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सोशल मीडिया पर ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि इज हिना खान एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद शिल्पा और इज शी जस्ट प्योर क्लाउड चेजिंग. लॉकअप का ये वीकेंड एपिसोड में ये दोनों आती है जनता की आवाज बन के. इनके पास पावर है कि ये 5 अनसेफ कंटेस्टेंट में किसी एक को सेव करेंगे. अब यहाँ आता है ट्विस्ट. उर्फी क्लियरली शिल्पा शिंदे को सेव करना चाहती थी पर हिना खान नो वे, शी इज नॉट गोइंग टू सेव शिल्पा बिकॉज शी इज सो जेलस ऑफ हर. हिना ने शिल्पा को सेव करने से साफ मना कर दिया. पर यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट भी है. हिना बहुत ही ज्यादा स्मार्टली ऑडियंस को गैसलाइट भी करती है. वो सबको ये दिखाती है कि शी इज नॉट जेलस ऑफ हर एंड वो बहुत ही सिक्योर्ड पोजीशन में है. वो शिल्पा को सेव इसीलिए नहीं कर रही है बिकॉज शिल्पा कैरेक्टर असैसिनेट करती है सबका एंड आई एम सच अ ग्रेट पर्सन. मैंने पुरानी सारी बातें भूल गई हूँ बट आई विल स्टार्ट अ नैरेटिव अगेंस्ट शिल्पा दैट शी इज मॉरली इनकरेक्ट. हिना ने ऑडियंस को दिखाने के लिए बहुत ही मैच्योर टेक लिया शिल्पा शिंदे के गेम को लेकर. उसने शिल्पा को क्रेडिट दिया. उसने एडमिट किया कि बाकी घर वाले तो बस लैडर बन रहे हैं शिल्पा और श्रेया के लिए ताकि श्रेया और शिल्पा उन पे चढ़ के जीत जाए. उन्होंने कहा कि असली शो के चेहरे ये दोनों ही है. हिना ने ये भी बोला कि शिल्पा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कंट्रीब्यूशन तो उनका सबसे स्ट्रांग है बिकॉज ये फैक्ट है. एवरीबडी नोज दैट. अगर हिना आके बोलेगी कि शिल्पा तो कुछ नहीं कर रही है, शिल्पा तो ये वो, तो पीपल विल क्लियरली से कि यू आर जेलस. बट ऑडियंस को गैसलाइट करने के लिए पहले उसकी तारीफ की एंड देन अपना डिसटेस्टफुल दिखाया और जेलसी भी दिखाई. जब सेव करने की बारी आई तो उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं इस तरह के गेम प्ले को सपोर्ट नहीं करती जहां कैरेक्टर असैसिनेशन हो. और बाद में उसने क्या किया, बाद में सेव करने की बारी आई तो उसने शिल्पा को सेव नहीं करके लैला को सेव किया. अब यहाँ पे आप आयरनी देखो. जब हमें क्लिप्स दिखाई गई तो एक क्लिप में हम देखते हैं कि शिल्पा कहती है
कि हीना भले ही उसकी एक राइवल टाइप रही हो, शी विल नेवर टेक अ रिवेंज ऑन मी एंड नॉट सेव मी, शी इज डिसेंट लाइक दैट। अभी तक शिल्पा उसके अंदर अच्छाई देख रही है कि ठीक है हमारी राइवलरी है, बट इतनी वो ग्रज होल्ड नहीं करती कि मुझे सेव ही ना करे। शी डजंट लाइक मी, बट ये सारी चीजों में शी इज डिसेंट एंड वो सही फैसला करती। बट बाद में क्या होता है, सेव करने के बारे में वही हीना अपनी दुश्मनी निभाती है। एंड लेटर ऑन एक क्लिप में ये भी दिखाया जाता है कि शिल्पा भी बोलती है कि हीना कैन गो टू हेल। वो खुद क्या क्या बोलकर आई है वो हमें सब पता है। तो क्लियरली शिल्पा शिंदे भी नहीं जाने देंगी हीना खान को, और वो भी उसे याद दिलाएंगी उसने जो भी किया। लोगों की आदत होती है बड़ी कन्वीनियंटली खुद का किया धरा भूल जाते हैं और दूसरे इंसानों को वही चीज के लिए टारगेट करते हैं। एंड दिस इज हिपोक्रेसी। अगर आपके खुद के पास्ट में इतनी सारी चीजें हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप एज अ गेस्ट आके अपने आप को मॉरली करेक्ट बताओ। अब जैसे ही ये एपिसोड एयर होता है, इसके क्लिप्स वायरल होने लगते हैं, इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ हीना के फैंस बोलते हैं शी इज एब्सोल्यूट क्लास, वो ऑनेस्ट है एंड ऑलवेज स्ट्रेट टू द पॉइंट है। पर दूसरी तरफ रेडिट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लोगों ने पूरी क्लास लगा दी हीना खान की। लोगों ने बिग बॉस 11 के पुराने क्लिप्स निकाली, वो क्लिप्स को हीना के आज के स्टेटमेंट से कंपेयर किया और कहा कि देखो हिपोक्रेसी। ऑडियंस ने बोला कि अरे भाई हीना खान ये क्या बोल रही है, बिग बॉस में अपने आप को देख। शिल्पा और अर्शी को तूने आंटीज बोला था, बॉडी शेम किया था, ड्रम जैसी बोला था, ढिंचैक पूजा का मजाक उड़ाया था क्योंकि उसके सर में लाइस थी। सो या पीपल आर पॉइंटिंग आउट कि हीना खान इज बीइंग अ टोटल हिपोक्रेट। मतलब आप किसी के गेम प्ले पर उंगली तब उठाते हो जब आपका खुद का जो पास्ट है वो स्पॉटलेस हो। अगर ये सेम चीज फॉर इंस्टेंस दीपिका कक्कर आके कहती कि आप ऐसे मत करो, ये मॉरली करेक्ट नहीं है, मैं ये चीज पे बिलीव नहीं करती, तो हम एक बार ट्रस्ट भी कर लेते। बट इट वॉज हीना खान सेइंग दैट। लोगों ने बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया वो चीज से। Now let's address the main issue। ये जो हीना खान और शिल्पा का सालों पुराना 36 का आंकड़ा है, इसको लेके एक बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है। कुछ फैंस का कहना है कि हीना जस्ट कैन नॉट गेट ओवर बिग बॉस 11 फेलियर। जैसे मैंने आपको कमेंट्स पढ़ के दिखाया, अभी शिल्पा ने ट्रॉफी जीत ली एंड हीना वॉज द रनर अप, राइट? बट हीना इज नॉट गेटिंग ओवर इट। इट्स बीन 8 years आई गेस, बट स्टिल वो ये चीज पे ही अटकी हुई है। हीना इज स्टिल सॉल्टी अबाउट इट। और जब भी शिल्पा न्यूज में आती है, चाहे उनका वो पहले वाला कंट्रोवर्शियल लीगल स्टेटमेंट हो कि उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट केस किया था जो कि फेक था, या लॉकअप का गेम हो, हीना का रिएक्शन आपको पता ही होता है कि वो आने वाला है और वो क्या होने वाला है। आई मीन जस्ट इमेजिन द ऑब्सेशन कि अपनी बिग बॉस राइवल को नीचा दिखाने के लिए आप अपने 3 दोस्तों के साथ एक चैनल ही खोल दो जहाँ पे आप चुगलियां करो, लाइक चुगलखोर आंटीज। अब बात करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि इज दिस क्लाउड चेजिंग। तो हो सकता है कि ये क्लाउड चेजिंग ही हो। हीना के फैंस का कहना है कि हीना जैसी इस्टेब्लिश्ड स्टार को क्या जरूरत है क्लाउड चेस की। बट रियलिटी टीवी वर्ल्ड में एंगेजमेंट इज एवरीथिंग। अब जब शिल्पा शिंदे ट्रेंड हो रही है बिकॉज ऑफ लॉकअप एंड हर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, तो ये बहुत अच्छा मौका है एक्स राइवल का पिक्चर में आके कमेंट करना, ताकि उनका नाम ले लो और वो हेडलाइंस में बनी रहे। टीआरपी मिलती है, इंटरनेट पे डिबेट भी छिड़ जाती है और सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट्स भी होती है। अब जैसे कि हीना खान हमें कोई भी शो में आती हुई नजर नहीं आ रही थी। हीना खान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप को भी प्रमोट कर रही थी। इसीलिए जैसे ही शिल्पा शिंदे हेडलाइंस में आई, हीना ने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं भी हेडलाइंस में आ जाती हूँ, क्या पता मुझे भी बुला ले। और यही हुआ, फिर से शिल्पा शिंदे की वजह से हीना हेडलाइंस में आ गई एंड हीना वर्सेस शिल्पा वाली जंग फिर से छिड़ गई। सो या ये दोनों चीज का मिक्स है, ये ऑब्सेशन भी है और ये क्लाउड चेजिंग भी है एंड एक डेस्परेट सेलिब्रिटी भी है। उसको पता है कि कहाँ उसको रेलेवेंसी मिलेगी। शिल्पा एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो स्क्रीन पर आग लगा देती है, चाहे आप उसको प्यार करो या हेट करो। हीना का लॉकअप में आना और डायरेक्टली शिल्पा को टारगेट करना ही कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मेकर्स को भी पता है कि इन दोनों का आमना सामना लेकर फायरवर्क्स कैसे निकालनी है। सो एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी शो बिना इन पुरानी राइवलरीज के अधूरे है। तो ये जो लॉकअप वाले हैं ये इसका फुल फायदा उठा रहे हैं। हीना ने अपना पॉइंट रखा, शिल्पा ने अपना स्टैंड लिया और हम लोगों को कंटेंट मिल गया पूरे हफ्ते के लिए। आपको क्या लगता है, इज हीना खान जेन्युइनली कॉलिंग आउट रॉन्ग बिहेवियर? शी मस्ट हैव चेंज्ड और अभी वो बदल गई है इसीलिए वो कॉल आउट कर रही है, या फिर शी इज जस्ट फाइंडिंग वेज टू स्टे रेलिवेंट अराउंड शिल्पा शिंदे? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।